بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ کا سبق نمبر 61 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مرہ اور تکرار کے حوالے سے جس گفتگو کا ہم نے گزشتہ درس میں آغاز کیا تھا اس کو انشاءاللہ اتمام تک پہنچائیں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ مرہ کیا ہوتا ہے اور تکرار کیا ہوتا ہے۔ مرہ سے مراد یہ ہے کہ کسی کام کو ایک مرتبہ انجام دینا، اور تکرار سے مراد یہ ہے کہ ایک کام کو بار بار تکرار کے ساتھ انجام دینا جس طرح کے مولا نے مطلوب کیا ہو۔ اگر تو ہمارے پاس دلیل موجود ہو کہ یہ مرہ پہ دلالت کرتا ہے تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، اگر دلیل کے تکرار کے مطابق عمل کیا جائے تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ لیکن اگر ہمارے پاس دلیل موجود نہ ہو تو پھر ہم نے دو صورتیں بیان کی تھی، ایک ظہور وضعی کے اعتبار سے، ایک ظہور اطلاقی کے اعتبار سے۔ ظہور وضعی کے اعتبار سے ہمارے سامنے 4 اقوال آئے تھے کہ جن میں سے مصنف نے چوتھے قبول کو قبول کیا تھا کہ وضعیت میں نہ مرہ پہ دلالت کرتا ہے اور نہ ہی تکرار پہ دلالت کرتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ظہور اطلاقی کا، اس میں مصنف نے ثابت کیا تھا کہ ہمارا جو صیغہ امر ہے وہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ مرہ پہ دلالت کرتا ہے۔ البتہ مصنف نے وہاں پہ 3 طرح کے احتمالات دیے تھے۔ ایک فلسفی بحث کو بطور مقدمہ بیان کیا تھا جس میں انہوں نے وجود اور طبیعت کی 2 قسمیں بیان کی تھی، تو وہ قسمیں بطور مقدمہ بیان کرنے کے بعد مصنف نے 3 احتمالات دیے تھے۔ پہلا یہ تھا کہ وہ مقام جہاں پہ مولا کو صرف الوجود ہی چاہیے ہوتا ہے کہ وجود حاضر ہو جائے، چاہے وہ جس انداز سے بھی ہو، 1 مرتبہ ہو یا 100 مرتبہ ہو یا 1000 مرتبہ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دوسری جو صورت، دوسرا احتمال ہم نے دیا تھا، اس میں کہا تھا کہ مولا کیا کرتا ہے کہ وجود کو طلب کرتا ہے لیکن وحدت کی قید لگاتا ہے کہ اس کو 1 مرتبہ انجام دیا، 1 سے زیادہ مرتبہ انجام نہ دیا جائے، جیسا کہ ہم نے مثال دی تکبیرۃ الاحرام کی۔ آج اسے اگلی صورت، تیسری صورت بیان کر رہے ہیں جو کہ اسی سے متعلق ہے۔ الثالث ان یکون المطلوب الوجود المتکررہ، فرماتے جو مطلوب مولا ہو وہ کیا ہو؟ وجود متکرر ہو، یعنی دوسری صورت کا برعکس۔ دوسری صورت میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ مولا چاہتا ہے کہ اس کو 1 مرتبہ انجام دے، وہاں پہ مولا وحدت کی قید اور شرط لگا دیتا ہے۔ لیکن تیسری صورت میں کیا ہے کہ مولا کو 1 مرتبہ عمل نہیں چاہیے، بلکہ وہ امر اس صورت میں دیتا ہے کہ جو اس کا مخاطب ہے، جو اس کا عبد ہے، وہ اس کام کو تکرار کی صورت میں انجام دے۔ پس اس صورت میں مرہ پہ اکتفا کرنا کافی نہیں ہوگا۔ البتہ یہاں پہ ہمارے سامنے 2 صورتیں آ جائیں گی اسی قسم کی، یعنی جو مولا نے تکرار ہم سے طلب کیا ہے وہ تکرار ہمارے سامنے 2 صورتوں میں آتا ہے۔ ان یکون المطلوب الوجود المتکررہ، جو مطلوب مولا ہو کیا ہو؟ وجود متکرر ہو۔ اما یہاں سے بیان کر رہے ہیں پہلی صورت کو۔ پہلی صورت میں کیا ہے کہ وہاں پہ مولا تکرر کی شرط لگا دے کہ اس کام کو تکرر کے ساتھ ہی انجام دینا چاہیے، یعنی وہاں پہ مجموع بما ہوا، مجموع مراد ہوتا ہے فرد واحد۔ مولا وہاں پہ طلب نہیں کر رہا کہ ایک فرد کو انجام دے تو میرے لیے کافی نہیں، مولا کہتا ہے کہ یہ سارے کا سارا آپ نے انجام دینا ہے، مجموع بما ہوا مجموع۔ آسان سی مثال جس طرح نماز کی رکعت، مولا کہتا ہے کہ میں نماز کی رکعت پڑھنے کا حکم دیتا ہوں یا 2 صورتوں میں یا 3 کی صورت میں یا پھر 4 کی صورت میں، یعنی اگر تم 1 رکعت پڑھو گے تو امر مولا کا امتثال نہیں ہو پائے گا۔ تو فرماتے اس صورت میں کیا ہے، رکعت کو 2 یا 3 یا 4 جس طرح مولا تکرار کا مطالبہ کرے گا، جس طرح شرط لگائے گا، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ فرماتے پہلی صورت اما بشرط تکرر ہی، یا تو مولا کیا کرے، مطلوب کے تکرر کی شرط لگا دے جس کو ہم نے شرط شیء کا نام دیا تھا۔ فیکون المطلوب هو المجموع بما ہوا مجموع، فرماتے یہاں پہ جو مطلوب مولا ہوگا وہ مجموع من حیث المجموع ہوگا، یعنی سارے کا سارا 2 رکعت ہے تو 2 کی 2 پڑھنی پڑیں گی، 3 رکعت ہے تو 3 کی 3، 4 ہے تو 4 کی 4، 1 رکعت پہ اکتفا نہیں کیا جا سکتا، یہاں پہ تکرار کرنا ضروری ہے۔ فلا یحصل الامتثال بالمرۃ اصلا، فرماتے ہیں اس صورت میں کہ اگر مولا تکرار کو طلب کرتا ہے تو اگر آپ مرہ کی صورت میں امتثال کرتے ہیں تو اصلاً امتثال حاصل نہیں ہوگا، جو مطلوب مولا ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ مثال کا رکعات الصلاۃ الواحدہ، جیسا کہ ایک نماز کی جو رکعات ہیں 2 کی صورت میں، 3 کی صورت میں یا 4 کی صورت میں، فرماتے ہیں اسی مطابق اس کو انجام دیا جائے گا۔ یہاں 1 رکعت پہ اکتفا کرنا کافی شمار نہیں ہوگا اور امر مولا کا امتثال بھی نہیں ہوگا۔ اما سے بیان کر رہے ہیں دوسری شرط کو۔ پہلی شرط میں کیا بیان کیا کہ وہاں پہ مولا تکرر کی شرط لگا دیتا ہے، لیکن فرماتے یہ جو دوسری صورت ہے اس میں کیا ہے، لا بشرط تکرر ہی، مولا تکرر کی شرط نہیں لگاتا، یعنی وہ کیا ہے، وہ اکٹھے نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے، مجموع بما ہوا مجموع کی صورت میں نہیں جس طرح پہلی صورت میں بیان کیا، بلکہ فرماتے سب کا الگ الگ اور جدا گانا مستقل وجود ہوتا ہے، لیکن مولا کیا کرتا ہے کہ ان کو تم ایک ساتھ انجام دو، مولا یہ چاہتا ہے۔ فرماتے لا بشرط
तकर्रुरही बेमाना, फरमाते उसके तकरार में ये शर्त नहीं होगी। किस तरह से कि बेमाना अन्नहु यकूनुल मतलूब कुल्ला वाहिदिन मिनल वुजूदात, फरमाते हैं कि इस सूरत में क्या करेंगे, हम उसको इस तरह अंजाम देंगे कि जो मतलूब मौला हो वो वजूदात में से हर एक क्या हो, मतलूब हो। यानी मजमू बिमा हुआ मजमू मौला की मुराद ना, बल्कि जो मतलूब मौला है वो हर एक वजूद अलग अलग मौला की मुराद है। मिसाल फरमाते हैं कसौ में अय्याम शहर रमजान, जिस तरह माह मुबारक रमजान के जो 30 दिन के रोजे हैं वो क्या है, मौला चाहता है तुम 30 के 30 रोजे रखो, लेकिन क्या 30 रोजे इकट्ठे रखे जाएंगे? फरमाते हैं ना, मजमू बिमा मजमू नहीं होगा, बल्कि हर एक यानी एक दिन का रोजा अलग अलग रखा जाएगा। लेकिन मौला क्या करता है, तकरार की सूरत में उसको तलब कर रहा है। तकरार तो है लेकिन वहां पे शर्त तकरार नहीं है कि तुम इनको इकट्ठा अंजाम दो, बल्कि क्या है वहां पे अलग अलग अंजाम दो, लेकिन सबको अंजाम देना जरूरी है। फालिकुल्ले मर्रतिन इम्तिसालुहल खास, फरमाते हैं हर मर्रा के लिए और हर एक दिन के लिए क्या है, अपना एक खास इम्तिसाल है, उसका दूसरे के साथ ताल्लुक नहीं है। इस सूरत में और पहली सूरत में फर्क आ जाएगा। किस एतबार का कि पहली वाली जो सूरत है वो उमूम मजमूई को बयान करती है और ये वाली उमूम इस्तिगराकी को बयान करती है, जिसकी तफसील इंशाल्लाह आम खास के बाब में आ जाएगी। आगे फरमाते हैं वला शक्का, अब तक हमने तीनों सूरतें बयान कर दी, हमारे सामने तीनों की तीनों सूरतें वाज़ेह होगी। अब यहाँ पे सवाल यह है कि जो पहली वाली सूरत थी सिर्फुल वजूद वाली, या दूसरी सूरत थी जहां पे मौला मर्रा की शर्त लगाता है, या तीसरी सूरत जहां पे मौला तकरार की शर्त लगाता है, आया इन तीन सूरतों में से जो सीगा अमर हमारे सामने आ रहा है वो कौन सी वाली सूरत को समझा रहा है? आया तीनों सूरतें मुराद है या तीनों में से कोई एक सूरत मुराद है या दो सूरतें मुराद है? फरमाते हैं जवाब वला शक्का इन्नल वजहैनिल अखीरैन, फरमाते आखिरी जो दो सूरतें कौन सी आखिरी, यानी जहां पे मौला वहदत की कैद लगा दे या मौला तकरार की कैद लगा दे। फरमाते जो आखिरी दो सूरतें हैं यहताजान इला बयानिन जाइदिन अला मफादिस सीगा, फरमाते हैं जो सीगा इफल है उसके ऊपर हमें बयान जायद की एक इजाफी कैद की क्या होगी, वहां पे जरूरत होगी। यानी खुद इतलाके सीगा जो है, जो सीगा अमर है वो आखिरी वाली दो सूरतों को बयान नहीं करेगा, बल्कि वहां पे एक इजाफी कैद की जरूरत पड़ेगी जिससे हम समझ सके कि मौला यहाँ पे मर्रा को शर्त करार दे रहा है या फिर तकरार को शर्त करार दे रहा है। आपके लिए वाज़ेह हो चुका कि आखिरी जो दो सूरतें हैं वो हमें सीगा अमर से समझ नहीं आती। सीगा अमर से हमें कौन सी समझ में आती है? सीगा अमर से हमें सिर्फ पहली वाली सूरत समझ में आती है और कोई सूरत समझ में नहीं आती। फलौ अतलकल मौला, फरमाते अगर मौला का कलाम क्या हो, मुतलक हो, वलम युकय्यद बिअहदिल वजहैन, और इन दोनों सूरतों में से वजहैन यानी इशारा किस जानिब है, मर्रा के साथ या तकरार के साथ, वो क्या करता है शर्त करार नहीं देता, उसकी कैद नहीं लगाता। दर हालांकि वह हुआ फी मकामिल बयान, वो क्या है मौला मकाम बयान में भी है। अगर शर्त मकसूद हो तो शर्त बयान करेगा, शर्त मकसूद ना हुई तो वह बयान नहीं करेगा। फरमाते अगर मौला का कलाम मुतलक हो और उसमें ना मर्रा की शर्त हो ना तकरार की शर्त हो, काना इतलाकुहु दलीलन अला इरादतिल वजहिल अव्वल, तो फरमाते हैं मौला का इतलाके कलाम इस बात की दलील होगा कि उसने वजह अव्वल का इरादा किया, यानी कौन सी वाली, जहां पे मौला को सिर्फुल वजूद चाहिए, चाहे वो एक फर्द की सूरत में हो या 10 अफराद की सूरत में हो। फरमाते हैं कि इतलाके सीगा से हमें सिर्फ इस बात का इल्म हासिल होगा कि मौला की जो मुराद है वो पहली वाली सूरत है। आगे फरमाते हैं व अलैहि व अलैहि, क्या मतलब, जब हमारे लिए वाज़ेह हो चुका कि सीगा अमर पहली सूरत को समझाता है, दूसरी तीसरी को समझाता नहीं, बल्कि उसके लिए इजाफी कैद की जरूरत पड़ती है। फरमाते हैं व अलैहि यासुलुल इम्तिसालो, फरमाते हैं कि इस सूरत में क्या है इम्तिसाल हासिल हो जाएगा। कमा कुल्ना, जिस तरह कि हमने जब वजूद की किस्में बयान की थी वहां हम ये बात वाज़ेह कर दी थी कि इम्तिसाल हासिल हो जाता है किस तरह, बिल वजूदिल अव्वल, जैसे ही वजूद अव्वल आ जाएगा आप मर्रा पे अमल करेंगे, एक मरतबा उस अमल को अंजाम देंगे तो इम्तिसाल हासिल हो जाएगा। वलकिन ला यज़ुरुल वजूदुस्सानी, उसको दूसरी मरतबा अंजाम दें, फरमाते दूसरी मरतबा अंजाम देने से ना आपको कोई फायदा हासिल होगा ना उसका आपको कोई नुकसान होगा, यानी उस दूसरे वजूद का असल वहां पे फायदा नहीं। क्यों? इसलिए कि इम्तिसाल तो पहले वजूद से ही हासिल हो चुका है। कमा अन्नहु ला असर लहू फिल इम्तिसाल व गरजिल मौला, फरमाते अगर आप दूसरे वजूद को लें तो फरमाते ना उसका इम्तिसाल में कोई असर है और ना गरज मौला के साथ उसका कोई ताल्लुक है। क्यों? गरज मौला को तो पहले वजूद नहीं पूरा कर दिया, इम्तिसाल तो वहीं पे हासिल हो गया। आप जो दूसरा वजूद है फरमाते अगर आप इसको अंजाम ना भी दें तब भी क्या होगा, आपका इम्तिसाल शुमार
हो जाएगा। वमिम्मा ज़करना, फरमाते अब तक जो हमने बात आपके लिए बयान कर दी वो बात हमारे लिए क्या करती है, यत्तज़िहु, ये वाज़े करती है, नतीजा देती है क्या, अन्ना मुक्तज़ल इतलाके जवाजुल इतियाने बे अफरादिन कसीरतिन मअन दफ़अतन वाहिदा। फरमाते हैं कि यहाँ पे दफ़ा वाहिदा को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा। फरमाते मर्रा और तकरार के दो मानी हैं, एक है दफ़ा और दफ़ात और दूसरा है फर्द और अफराद। फरमाते फर्क है इन दोनों में, फरमाते दोनों में फर्क है आम खास का। अगर हम दफ़ा और दूसरी जानिब से फर्द को लें, फरमाते जब दोनों का मुकायसा करेंगे तो हमारे लिए जो दफ़ा है वो क्या है, फर्द से आम है, यानी फर्द का माना खास है और दफ़ा का माना क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि जब हम दफ़ा कहते हैं, दफ़ा यानी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि एक दफ़ा या एक दफ़ा ये काम हुआ, एक दफ़ा का जिक्र है वगैरह वगैरह। फरमाते जो दफ़ा उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, फरमाते ये जो दफ़ा है इसमें हम एक फर्द को भी ला सकते हैं और इसके अंदर हम कई अफराद को भी ला सकते हैं, यानी एक ही मर्तबा एक फर्द भी शामिल हो सकता है और कई अफराद भी शामिल हो सकते हैं। तो इसका मतलब दफ़ा आम है और फर्द खास है। लेकिन अगर दफ़ात और अफराद को देखें तो फरमाते उस सूरत में क्या है, उस सूरत में अफराद जो है वो दफ़ात से आम है। क्यों, फरमाते इसलिए कि मुमकिन है कि अफरादे कसीर को एक दफ़ा में शामिल कर लिया जाए या कई दफ़ात में अफराद को शामिल किया जा सकता है। पास दफ़ात में भी क्या है, वसअत पाई जाती है। फरमाते यहां पे जो दो मानी है कौन सी हमारी मुराद है, फरमाते हमारी मुराद जो है वो दफ़ा मुराद है, दफ़ा और दफ़ात मुराद है, माना अव्वल मुराद है, फर्द और अफराद वाला माना हमारी मुराद नहीं है। जो हम मर्रा कह रहे हैं, मर्रा से मुराद है कि एक दफ़ा अंजाम दिया, चाहे वो एक फर्द की सूरत में हो या हजार अफराद की सूरत में हो, फर्द और अफराद हमारी मुराद नहीं है। इसी बात को ऊपर बयान कर रहे हैं। फरमाते वमिम्मा ज़करना यत्तज़िहु, जो अब तक हमने बयान किया उससे आपके लिए वाज़ेह हो चुका होगा कि अन्ना मुक्तज़ल इतलाक़ जवाज़ुल इतियान बे अफरादिन कसीरा मअन दफ़अतन वाहिदा, कि इतलाक का तकाजा यह है कि कई एक अफराद को एक साथ ही बजा लाया जा सकता है, दफ़अतन वाहिदा, एक ही मर्तबा में क्या किया जा सकता है, कई अफराद को आप बजा ला सकते हैं। जरूरी है कि आप एक फर्द को अंजाम दे, बल्कि दफ़ा वाहिदा में, मर्रा वाहिदा में आप एक से ज्यादा अफराद को भी बजा ला सकते हैं। वयहसुलुल इम्तिसालु बिल जमी, और मर्रा की सूरत में क्या है, सबका इम्तिसाल हासिल हो जाएगा, आपको हर फर्द को अलग अलग अंजाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल फरमाते फलौ काल मौला तसद्दक अला मिस्कीन, मौला कहता है कि क्या करो, मिस्कीन को सदका दो, मौला मिस्कीन को सदका देने का हुक्म देता है। फरमाते फमुक्तज़ल इतलाके जवाजुल इक्तिफाए बितसद्दुके मर्रतन वाहिदा अला मिस्कीन वाहिद। फरमाते हैं कि इस सूरत में क्या है, इतलाक इस बात का तकाजा करता है कि सदका देना काफी शुमार होगा, किस सूरत में, मर्रतन वाहिदा। क्यों, मौला ने तो कैद नहीं लगाई, मौला का कलाम मुतलक है, जो जब मुतलक है तो सिर्फुल वजूद चाह रहा है कि क्या, हम मर्रा वाहिदा में तसद्दुक को अंजाम दे, सदका दें, अला मिस्कीन वाहिद, एक ही मिस्कीन को। फरमाते तब भी सही है, इम्तिसाल हो जाएगा। और फरमाते हैं वहुसूल इम्तिसाल बितसद्दुके अला इद्दते मसाकीन दफ़अतन वाहिदा। फरमाते अगर आप एक ही दफा में कई एक मसाकीन को सदका दे देते हैं तो उस सूरत में भी इम्तिसाल हासिल हो जाएगा। यानी मर्रा वाहिदा में आप दोनों काम कर सकते हैं, एक ही टाइम में आप एक मिस्कीन को सदका भी दे सकते हैं और एक ही टाइम में आप 10 या 20 मसाकीन को भी सदका दे सकते हैं। ये आगे मिसाल आ रही है, तस्वीरों पे गौर कीजिएगा। फरमाते वयकूनु इम्तिसालन वाहिदन बिल जमी, फरमाते हैं कि ये जो हम एक ही वक्त में 10 मसाकीन या 100 मिस्कीनों को क्या कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं। फरमाते अलग अलग इम्तिसाल है, फरमाते ना वयकूनु इम्तिसालन वाहिदन बिल जमी, फरमाते हैं कि ये जो इम्तिसाल वाहिद है ये सब के सब अफराद के ऊपर होगा। ला सदका सिर्फुल वजूद अलल जमी, और क्या होगा, सिर्फुल वजूद सारे के सारे अफराद पर सादिक आ जाएगा। क्यों, इसलिए कि मौला ने मर्रा का तकाजा किया, मर्रा चाहे एक फर्द पे हो या कई अफराद पे हो बराबर सादिक आ जाएगा। क्यों, इज़िल इम्तिसाल कमा यहसुल बिल फर्दिल वाहिद, फरमाते जिस तरह इम्तिसाल एक फर्द वाहिद से हासिल हो जाता है, आप एक शख्स को सदका देते हैं मिस्कीन को, फरमाते जिस तरह इस सूरत में इम्तिसाल हासिल हो जाएगा, यहसुलु बिल अफरादिल मुज्तमिआत बिल वजूद, फरमाते वो वाले अफराद जो वजूद के एतबार से जमा, जिस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कई अफराद एक साथ बैठे खाना खा रहे हैं, आप सबको क्या कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, उसको सदका दे रहे हैं। फरमाते एक ही दफा में क्या हो सकता है, ये काम भी हो सकता है कि आप फर्द पे भी अमल कर सकते हैं और आप अफराद पे भी अमल कर सकते हैं। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, ज़ुहूर इतलाकी में कलाम मौला में हमारे सामने 3 सूरतें आती, जिसको हमने 2 सूरतों को गुज़श्ता दर्स में बयान किया था और तीसरी सूरत को हमने आज बयान किया। या मौला सिर्फुल वजूद का मुतालबा करता है, या मौला क्या करता है, वजूद के साथ वहदत की कैद लगा देता है, या वजूद के साथ तकरार की कैद लगा देता है। मुसन्निफ फरमाते कि इन तीनों
दोनों सूरतों में से इतलाक से क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ उल वजूद वाली सूरत को ही समझा जा सकता है कि जिसमें किसी किस्म की कैद मौजूद नहीं होती। जहां तक ताल्लुक है दूसरी और तीसरी सूरत का, तो फरमाते उसको समझने के लिए एक इजाफी कैद की जरूरत पड़ेगी जो वहदत या तकरार को मुअय्यन करे। फिर आगे फरमाते हैं जो अगला नुक्ता में इस तरह से हासिल हुआ कि मतलूब मौला जो है वो सिर्फ उल वजूद है, कि मौला को सिर्फ वजूद चाहिए, चाहे वो फर्द वाहिद की सूरत में हो या कई अफराद की सूरत में, उसे फर्क नहीं पड़ता। और मर्रा से जो हमारी मुराद है वो दफाए वाहिदा है कि एक ही दफा में अमल को अंजाम दिया जाए। फरमाते जिसमें फर्द भी शामिल है, जिसमें अफराद भी शामिल है। आप दफा वाहिदा में एक फर्द को भी अंजाम दे सकते हैं और दफा वाहिदा में आप कई अफराद को भी अंजाम दे सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।